بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی آئی اے نے 21 سال بعد خالص منافع حاصل کر لیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سالانہ نتائج کی منظوری دے دی۔ 2024 کے نتائج کے مطابق پی آئی اے نے 9.3 ارب روپے آپریشنل جبکہ 26.2 ارب روپے خالص منافع کمایا۔ قومی ایئر لائن کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زائد رہا جو دنیا کی کسی بھی بہترین ایئر لائن کی پرفارمنس کے ہم پلہ ہے۔ تفصیلات کاشف منیر سے۔ جی کاشف بتائیے گا۔ دیکھیں جی، پی آئی اے نے تقریباً 2003 کے بعد 21 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا منافع شو کیا ہے۔ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پی آئی اے کے سال 2024 کے سالانہ نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ 21 سال کے طویل عرصے کے بعد جو ہے خالص منافع کمایا ہے۔ پی آئی اے نے 9.3 ارب روپے آپریشنل منافع جبکہ 26.2 ارب روپے خالص منافع کمایا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زائد رہا جو دنیا کی کسی بھی بہترین ایئر لائن کی پرفارمنس کے ہم پلہ ہے۔ پی آئی اے نے آخری منافع سال 2003 میں حاصل کیا تھا جس کے بعد سے 2 دہائیوں تک پی آئی اے خسارے سے دوچار رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے اس عمل کا باضابطہ اعلان کیا گیا اور اس مالیاتی کارکردگی کو نجکاری کے لیے بہت اہم قرار دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا کاشف۔ پاکستان نے معدنی وسائل کی تلاش کا مشن، حکومت اور دنیا بھر سے آئی مختلف کمپنیز کے درمیان معاہدے ایم او یوز پر دستخط۔ روس، برطانیہ، چین، جنوبی افریقہ، آذربائیجان کی کمپنیز کے ساتھ معاہدے طے پا گئے۔ معاہدوں کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سٹیج پر موجود تھے۔ معیشت کے لیے نیک شگون، پاکستان میں معاشی تجارتی سرگرمیاں عروج پر۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں انعقاد۔ فورم میں آذربائیجان کے وزیر معیشت مکائل جابروف، امریکی نمائندہ ایرک مائرز اور سعودی نائب وزیر صنعت عبداللہ العنیزی سمیت غیر ملکی وفود شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزراء جام کمال، کیسر شیخ، احسن اقبال، علیم خان سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ ریگوڈک سمیت اہم معدنی منصوبوں میں سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور حکومتی پالیسیوں پر اہم سیشنز میں سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے قائل کیا جائے گا۔ فورم کے موقع پر جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور چائنا جیولوجیکل سروے، برطانیہ کی جیو سائنس سروسز اور جیولوجیکل سروے آف پاکستان، جیو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور روس کے جے ایس سی کمپنی کے درمیان ایم او یو کا تبادلہ ہوا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کمپنی، بلوچستان کی کان کنی اور معدنیات کے محکمے اور چینی کمپنی ایم سی سی کے درمیان ایم او یو کا تبادلہ کیا گیا۔ ماڑی منرلز اور لیبیا مائننگ کے درمیان پی پی ایل اور میٹسو اور پی پی ایل اور بالٹی لمیٹڈ میں ایم او یو کا تبادلہ کیا گیا۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایف ڈبلیو او، نان مائننگ بی ایم ایل آر اور مقامی عمائدین میں بھی ایم او یو کا تبادلہ ہوا۔ ایف ڈبلیو او اور آذربائیجان کی کمپنی آذرگولڈ معدنی ذخائر کی تلاش کے لیے او جی ڈی سی ایل اور این آر ایل ایم ایس پی اور بیری گولڈ کے درمیان بھی پاکستان منرل سیکیورٹی شراکت داری کے لیے ایم او یو کا تبادلہ کیا گیا۔ معدنی وسائل سے فائدہ اٹھا کر آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیں گے، مشترکہ کاوشوں سے پاکستان عالمی مالیاتی اداروں کو الوداع کہہ گیا۔ معدنی ذخائر سے پاکستان قرضوں کے پہاڑ سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان میں معدنی وسائل کے کھربوں ڈالر کے ذخائر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا پاکستان کو جلد دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ منرلز فورم سے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری ہو سکے گی۔ پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں۔ خلیجی ممالک، چین، یورپ، امریکہ کے سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ Would say goodbye to institutions like IMF, who have been, of course, a great source of assistance to Pakistan, spanning over decades. And Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies, costing us a fortune. Not only this, Alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. پاکستان میں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ معدنی وسائل کو برائے کار لانے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب، مزید کہا پاکستان معاشی استحکام کے نئے فیز میں داخل ہو رہا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ امید ہے اس فورم سے معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ فورم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ اب پاکستان کے تمام معاشی اشاریہ مثبت ہیں۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ Pakistan
is entering a new phase of economic progress. The government of Pakistan has taken tough but very essential decisions to stabilize the economy. The results of these efforts are becoming increasingly visible across key macroeconomic indicators. Strong remittance inflows and increasing foreign direct investment are providing much needed foreign exchange, boosting domestic consumption, investments, and overall economic growth. These achievements, coupled with improved credit rating from Fitch and Moody's, underscore our commitment to economic stability and fiscal discipline in the leadership of Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif. Ladies and gentlemen, Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, underpinned by its unparalleled geological wealth, anchored in the Tethyan metallurgical belt, one of the world's largest copper-gold zones. पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं, वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास करवाएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वस्ती सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। मुलाकात के लिए आने वाले बानी पीटीआई की बहनों समेत मुतादिद ख़वातीन को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस ने तमाम ख़वातीन को शादी हॉल मुंतकिल किया, जहां उन्होंने धरना दिया। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद बानी पीटीआई की बहनें और दीगर ख़वातीन घरों को रवाना हो गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की बानी पीटीआई की बहनों की गिरफ्तारी की तरदीद कहती हैं, पंजाब पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठीं और ख़ुद ही उतर गईं। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियाँ दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। बानी पीटीआई शाही अंदाज में जेल काट रहे हैं। बानी पीटीआई की बहनें धरना देने नहीं, अपने भाई से मिलने आई थीं। अलीमा खान का कहना था कि कानून के मुताबिक उन्हें ना मिलने दिया तो फिर वो धरना देंगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की वजाहत। प्रोग्राम सहाफ़ी में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोर्ट ऑर्डर और तयशुदा लाहे अमल के तहत एक लिस्ट दी जाती है। जिन अफराद के नाम लिस्ट में मौजूद नहीं, वो कैसे मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं और दंदनाते हुए अंदर चले जाते हैं। इस सूरत हाल में पार्टी डिसिप्लिन कहाँ है? लोगों को बताना पड़ेगा कि कहां से इनको पैगाम आया कि आप लोग कौन जाना, हम आपको अंदर कर देंगे, भिजवा देंगे, और क्यों गए ये। जब बहनें बैठी हुई हैं, बहनों को नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, वो धरना देने नहीं आई थी, वो अपने भाई से मिलने आई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कानून के मुताबिक हमें ना मिलने दिया तो फिर हम धरना देंगे। हमने तो इत्तला किसी को नहीं दी कि आप लोगों ने वहां जाने हैं जिनके नाम लिस्ट में नहीं है। तो मैं ये सवाल करता हूं कि पार्टी का नज़्म किधर है। पैदल चलने की मैंने कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। इस सब के बावजूद आप दंदनाते हुए 4 लोग जो हैं अंदर चले जाते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी की तीनों बहनों को हिरासत में लेने को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। गिरफ्तार की शदीद मजम्मत की। कहा, बानी पीटीआई की तीनों बहनों को आज मुलाकात नहीं करने दी गई। अलीमा खान ने कहा, जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक अडियाला जेल में बैठूंगी। 6 घंटे इंतजार के बाद बानी पीटीआई की फैमिली को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट का ऑर्डर, फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। जेल इंतजामिया की शराइत पर मुलाकात का कोई ऑर्डर नहीं। हमारी तरफ से पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया गया। हमने धरने की कोई कॉल नहीं दी। मुलाकात नहीं हुई, किसी भी सूरत इनको अंदर आने नहीं दिया। इवन अडियाला के गेट तक नहीं आने दिया गया। इवेंचुअली 6 घंटे के इंतज़ार के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। और इसके हिरासत में लेने के वक्त जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनमें हामिद रज़ा साहब, शफकत अवान साहब, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। मियां अज़हर साहब जो 82 ईयर्स के ओल्ड है, उसको चोट लगी है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बाई की बहन से मुलाकात, बहन की बाई से मुलाकात जेल के रूल्स के अंदर है। ये सिर्फ खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद
पंजाब में पार्टी फैसलों का इख्तियार आलिया हमजा को मिल गया। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा पंजाब में अहदेदार मुअत्तल करने और जिम्मेदारी देने के लिए बाइख्तियार होंगी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ के पी में इख्तलाफात के खात्मे के लिए मरकज़ी क़यादत मुतहरिक है। अहम रहनुमाओं के अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान से मुलाकातों के बाद तैमूर सलीम झगड़ा से भी राबते। तीनों रहनुमाओं को खामोश रहने की हिदायत। बाहमी मुशावरत से अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन मुलाकात के लिए कोशिशें जारी हैं, ताहम दोनों एक दूसरे से मिलने पर राज़ी नहीं हैं। बानी पीटीआई सारे कार्ड उल्टे खेल कर अकेले रह गए। पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत भी। नहीं मिला कुछ तो बानी चेयरमैन को नहीं मिला। बानी के खिलाफ उनकी ही पार्टी की साजिशी सामने है। हम्माद अज़हर ने समझौते के तहत इस्तीफ़ा दिया, अब जल्द मंजर आम पर वापसी होगी। सेनेटर फैसल वावडा के तहलका खेज़ इंकशाफात। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, यह सब ड्रामा साजिश कौम को वक्त से पहले बता चुका था, आगे कौम खुद फैसला करे। गर्म मौसम में कराची की सियासत का भी पारा हाई। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर चढ़ाई। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी की सूबाई और ज़ली हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जवाब में सिंध की सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने भी अपनी तोपों का रुख एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया। किसने क्या कहा, तफसीलात रिपोर्ट में। सियासी महाज पर मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। दोनों जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची के हालात आज फिर खराब हो रहे हैं। शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। हालात खराब होने की असल वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। गुज़श्ता 14 साल से जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों की माशी, इक़्तिसादी और तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है, उसमें हमारी दरख्वास्त है कि मुल्क के दीगर हिस्सों से भी आवाज़ उठनी चाहिए। ये पाकिस्तान का मसला है, ये कौमी मसला है, इसको इलाकाई मसला ना समझा जाए, किसी यकलिसानी मसला ना समझा जाए, एमक्यूएम का मसला ना समझा जाए। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जब हमारे पास फैसला करने का इख्तियार था तो कराची तरक्की कर रहा था, हम क्यों हुकूमत में ना बैठे, अगली हुकूमत में भी बैठेंगे। कराची मेरे जमाने में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। ये हम एमक्यूएम नहीं कह रही, दुनिया कह रही। देखिए, आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के अदालत लगा के कहते थे कि काम देखना है तो जाकर कराची में जाकर देखो, लोगों की सरजनिश करते थे, रिकॉर्ड पर है। आप लोगों ने इसको तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस वाली बात को फैशन ना बनाएं। एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन मैदान में आ गए। कहा, माजी में बदअमनी फैलाने वाले किरदार आज हमें ताने दे रहे हैं। सिंध हुकूमत कराची को बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। एमक्यूएम ने इल्जाम लगाया कराची बदअमनी। सिंध पुलिस ने वो तमाम लोग जो कि इस बदअमनी में शामिल हैं उनको गिरफ्तार भी किया है, उनको मारा भी है और काफ़ी लोग जो हैं वो जेलों में इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो आपने माजी में हजारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। एक और एमक्यूएम का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो भी नफरतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के दौर में कराची में तरक्याती काम रिकॉर्ड हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, अंडर प्रोसेस भी हैं। शर्जील मेमन ने कहा, मुत्तहिदा के पास कोई एजेंडा नहीं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। एमक्यूएम ने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया, पहले उनका हिसाब तो दें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर कराची में इंतकाल कर गए। वो कई रोज़ से अलील और निजी अस्पताल में ज़रिए इलाज थे। ताज हैदर का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में होता है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन डिफेंस में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन समेत पार्टी रहनुमा और सियासी क़यादत ने ताज हैदर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान की सियासत का मारूफ नाम मुसन्निफ, ड्रामा निगार, माहिर तालीम और दानिश्वर ताज हैदर दागे मुफारकत दे गए। ताज हैदर 8 मार्च 1942 को भारतीय रियासत राजस्थान में एक इल्मी घराने में आंख खोली। इनके वालिद प्रोफेसर करार हुसैन मेरठ कॉलेज में अंग्रेजी अदब के उस्ताद थे। पाकिस्तान हिजरत के बाद ताज हैदर के खानदान ने कराची को मस्कन बनाया। इन्होंने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रंछोड़ लाइन से हासिल की। 1962 में कराची यूनिवर्सिटी से रियाजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ताज हैदर ने सियासी जिंदगी का आगाज 1967 में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया। इनका शुमार पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में होता है। ताज हैदर ने एटमी प्रोजेक्ट से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करने में भी अहम किरदार अदा किया। ताज हैदर मार्शल लॉ के दौर में कुछ अरसा सियासी जिंदगी से दूर रहे, ताहम
1989 में दोबारा सियासत में सरगर्म किरदार अदा किया। ताज हैदर पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी रहे। वो पहले 2 बार सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। 2013 में सूबाई हुकूमत के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुए। ताज हैदर को न्यूक्लियर पॉलिसी एतराफ में 2012 में सितारा हिलाल से भी नवाजा गया, जबकि 2016 में 13वें PTV अवार्ड में बेहतरीन ड्रामा मुसन्निफ का एजाज भी मिला। पंजाब में हीट वेव का खतरा है। PTMA ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। इंतजामिया को हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। DG PDMA का कहना है रवा माह पंजाब में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। बड़े शहरों, मैदानी इलाकों और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लपेट में आने का खतरा है। शहरी इस दौरान धूप में जाते हुए सर को ढांप कर रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिहाड़ी के नवाही इलाके फतुवाला चक्कर में ज़मीन के तनाज़े पर मुलज़मान की पुलिस पर फायरिंग, 13 एहलकार ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब मुतासरीन का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुनव्वर हुसैन रोज़ाना मज़ीद अपडेट करेंगे। जी मुनव्वर। हाँ जी बिल्कुल, अगर बिहाड़ी के नवा इलाका फत्तू वाले चक्कर की बात करें तो ताहाल जो इलाका है वो मैदान जंग बना हुआ है और वहाँ पर वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको बता चलूँ कि आपसे कुछ देर कबल जो है मुबैना तौर पर मे बरादरी जो है उनकी तरफ से जट बरादरी के ज़मीन पर मुबैना कब्जा करने की कोशिश की गई और जिसके नतीजे में वहाँ पर मौजूद मर्दो ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शदीद ज़ख्मी हुए। अब जिन मर्दो ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है वो इस वक्त मेन जो हासिलपुर बिहाड़ी रोड है उसको ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और यहाँ पर ज़ख्मियों को भी इस वक्त मेन रोड पर रखा गया। इनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर पंजाब उन्हें इंसाफ फराहम करे। जबकि आपको ये भी बता चलूँ कि DPO बिहाड़ी मंसूर मान जो है वो भारी नफरी के हमरा लुडन तो पहुंचे हैं, लेकिन ताहाल ना तो इस इलाके को खाली करवाया गया और ना ही वो यहाँ पर पहुंचे और ना ही इनकी कोई इमदादी जो कार्रवाई है वो की जा सकी है। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। ऑल डंपर्स ट्रक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने 16 अप्रैल को मुल्क भर की अहम शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक बंद करके एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन लियाकत महसूद का कहना है कि कराची में सियासी जमात की जानिब से अगर 10 और 12 अप्रैल को एहतजाज हुआ तो हम भी एहतजाज करेंगे। होते हमारे डंपर से तो लोग हमारी गाड़ी जलाते, अगर गाड़ी नहीं जलाए और उस मिसाल के तौर एक एक्सीडेंट हो गया और बंदा एक्सपायर हो गया, ठीक है, अगर आप डंपर जलाइए टैंकर जलाइए उससे तो बंदा वापस नहीं आते। मेरा ख्याल ये है कि उस जलाने से बेहतर ये है कि ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के बात कर ले और वो जो बच्चे शहीद हो जाते हैं, ये बंदा एक्सपायर हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि ट्रांसपोर्ट की तरफ से हम भरपूर इलानात इंशाल्लाह उस बंदों के लिए करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल डंपर्स ट्रक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन लियाकत महसूद ने कहा कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे सियासी जमात को ट्रांसपोर्टर के खिलाफ सियासत करने से रोकें। सिंध हुकूमत सनती इलाकों में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के दिन में इजाजत दे। अवाम अगर मुश्तैद होकर डंपर न जलाएं तो हादसे में होने वाले नुकसान पर मुआवजा अदा करेंगे। DIG ट्रैफिक को गाड़ियों में कैमरे ट्रैकर लगाने के हवाले से डेडलाइन दे दी है। का खिलाफ मैं पूरा कराची शहर भी बंद कर दूंगा। अगर 10 तारीख सुफ्राया रोड भी बंद होगा और 12 तारीख पे पूरा कराची शहर भी बंद होगा ट्रांसपोर्ट का खिलाफ, उसके बाद हम भी ट्रांसपोर्टर है, तो अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट हाथ नहीं रखेगा और अगर ये शरारती लोग गवर्नमेंट नहीं बैठाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह 16 तारीख पे हमारा और जितना ट्रांसपोर्टर है सब भी निकलेगा और पूरी पाकिस्तान के अंदर। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा हलीम खान ने कहा कि कराची में हादसा की बड़ी वजह कम उम्र बच्चों का मोटरसाइकिल चलाना है। जो कम उम्र बच्चे हैं उसमें मेरा बच्ची भी शामिल है, उसमें सदर साहब का भी है, सदर साहब का भी है, आप लोगों का भी बच्ची इसमें शामिल है। देखिए कम उम्र बच्चों की वजह से इस शहर में 100 में 95% एक्सीडेंट जो है वो कम उम्र बच्चों के होते हैं, क्योंकि इस पे हमारे DIG ट्रैफिक, हमारे IG सन, हमारे CM साहब जब तक इस पे नोटिस नहीं ले तो शहर के अंदर वारदात कभी कम नहीं होगा। डंपर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि गुज़श्ता 97 रोज में डंपर्स, ट्रेलर और वाटर टैंकर की टक्कर से 62 अफराद जान बहक हुए, जबकि इसी अरसे में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 249 अफराद जान बहक हुए हैं। कैमरामैन हफीजुर रहमान के साथ काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। एक रोज़ शदीद मंदी की तेज़ी, इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपये की कमी हुई। काशिफ मुनीर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। एक रोजा शदीद मंदी के बाद तेजी, इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 33 अरब मालियत के 53 करोड़ असेस के सौदे हुए। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,16,692 जबकि कम तरीन सतह 1,15,560 रही। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। फी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपए कमी के बाद 3,18,000 रुपए हो गई। इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 16 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 280 रुपए 57 पैसे से बढ़कर 280 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।